হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার চ্যানেল ডিএন রিয়াকশন জড়ি। আর আমি নীল, আমি দীপঙ্কর। আজকে আপনাদের কাছে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপরে। আর এটি একটি সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা কালেক্ট করেছি। সংবাদ মাধ্যমে নতুন দেখেছি ইন্ডিয়া টিভিতে, একদম রিসেন্ট, একদম কারেন্ট নিউজ। গত সপ্তাহের সম্ভবত মানে দিন 4-5 আগের নিউজ। এটা শনিবারের দিকে নিউজটা দেখেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের মধ্যে আবার ফার্স্ট লিডার হয়েছে, আবার প্রথম একজন নেতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন, যিনি 76% রেটিংয়ে আছেন গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। তো এটা আমাদের কাছে একটা বিরাট আনন্দের ব্যাপার। এবং নেক্সট টাইম ইনি প্রায় 3বারের মতো উনি ফার্স্ট রেটিংয়ে আছেন গোটা বিশ্বের মধ্যে। তো সমস্ত সমালোচকদের সামনেই এটা একটা বড় নিদর্শন, তাই জন্য আমরা আজকে আপনাদের সামনে ভিডিওটা এনেছি। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা আজকে দেখবেন আর কমেন্ট জানাবেন। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে একটা কথা বলে রাখা হলো, এটা কোনো পলিটিক্যাল লিডারের উপর ভিডিওটা হচ্ছে না, এটা সম্পূর্ণটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপর হচ্ছে। তো আপনারা সেরকমভাবে রিয়াক্ট করবেন। এটা কোনো পলিটিক্যাল জিনিস নিয়ে আমরা ভিডিওটা বানাচ্ছি না। এটা আমাদের দেশের সারা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর ভিডিওটা তৈরি হচ্ছে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কেন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বা ভারত তথা সারা বিশ্বের কাছে 76% রেটিংয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আর জনপ্রিয় কেন। আসলে প্রত্যেক দেশেরই প্রধানমন্ত্রী বদল হবে কয়েক বছর অন্তর, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে পদটা, তার একটা গুরুত্ব, তার একটা সম্মান আছে। তার যে পদের যে সেই চেয়ারটা, তার যে কুর্সিটা, তার একটা আলাদা মর্যাদা। আমরা সেটাকে নিয়ে গর্ববোধ করি। আমাদের সেই নরেন্দ্র মোদীর জন্য আমাদের দেশ আজকে বিশ্বের মধ্যে 1 নম্বর স্থানে পৌঁছেছে। এটা আমাদের কাছে তো একটা বিরাট গর্বের। তো সেই কারণে আমরা সেই প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য গর্ববোধ করি এবং তাকে নিয়ে আমরা অবশ্যই গর্ববোধ করব। এবং নিউজও সেটা দেখেছি, আমাদের দেখে খুব ভালো লেগেছে। ইন্ডিয়া টিভিতে গোটা দেশ সেই নিউজ দেখেছে। তো সেই কারণে আজকে আপনাদের সামনে আমরা ভিডিওটা দেখাবো। ইন্ডিয়া টিভি প্রতিবেদনটা খুব ভালোই দেখিয়েছে। তো চলুন আজকে সবাই মিলে দেখে নেওয়া যাক ইন্ডিয়া টিভি কি বলেছে, কি দেখিয়েছে। একদম। তো আপনারা ভালো করে জিনিসটা লক্ষ্য করবেন এবং খুব সুন্দরভাবে যেভাবে বৃত্তান্ত আলোচনা করেছে, পার্সেন্টেজ হিসাবে করে, এবং কোন দিকে কী হবে ওনার বক্তব্য সব কিছু রিসার্চ করেছে, ভালো করে ওটা লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ভিডিওটা। जो मोदी के सियासी दुश्मन हैं वो अभी भी एक जाल बिछाकर बैठे हैं। पूरे देश में केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी पर चर्चा हो, इसी पर इमेज बने और इसी पर घमासान मचा रहे। लेकिन क्या यही प्रधानमंत्री मोदी की सोच है? मोदी की सोच क्या है, इसे हम आज डिकोड करेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वां साल शुरू भी हो गया है और 10वें साल में चुनाव होंगे। 9वें साल से ही एक खास एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग भी शुरू हो गया है। कहीं हिंदू मुस्लिम पर विवाद तो कहीं मोदी पर झूठे आरोप। मगर प्रधानमंत्री मोदी की सोच हिंदू मुसलमान से कहीं ज्यादा आगे है। সত্যি ঠিকই বলে। नई रेटिंग आई, হিন্দু মুসলমান করে মরি, नया কিন্তু डेटा সে এসব आया ভাবে है। না। नए नंबर्स आए हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी नंबर 1 बने हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किसी मुल्क को अपने लीडर पर एकदम है 2022 तो वो अपडेट हिंदुस्तान डेटा। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस तस्वीर में देखिए, सबसे आगे, सबसे पहले हिंदुस्तान का तिरंगा है। 13वें नंबर पर अमेरिका का झंडा है। কতটা গর্বের ব্যাপার হলো, 21वें नंबर पर 76% ब्रिटेन का সবার फ्लैग है। উপরে আছে ভারতবর্ষ। भारत के तिरंगे के ठीक नीचे लिखा है 76% मोदी। अमेरिका के झंडे के नीचे लिखा है 40% बाइडेन। আমেরিকার 40% 40% अप्रूवल रेटिंग है। মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কত दुनिया की জনপ্রিয়। नई वर्ल्ड रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। दूसरे नंबर पर 66 अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति मैक्सिको, एंड्रेस नंबर, मैनुअल 66 लोपेज है। तीसरे नंबर पर 58 अप्रूवल रेटिंग के साथ स्वीडन की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन है। तमाम लीडर्स में मोदी इकलौते ऐसे लीडर हैं जिन्हें अप्रूव करने वालों का परसेंटेज नेट 58% प्लस में है। 76 अप्रूवल रेटिंग का क्या मतलब होता है? कैसे ये रेटिंग किसी लीडर को वर्ल्ड लीडर, किसी देश को दुनिया में स्पेशल बनाती है? लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी को 76 रेटिंग मिली है। इसका मतलब है हिंदुस्तान में 100 में से 76 लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा है। नई अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति को 40 पॉइंट मिले हैं, जिसका मतलब
100 में से 60 अमेरिकियों को अपने राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं, किसी वर्ल्ड समिट में शामिल होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व तो अलग नजर आता है। इसकी बड़ी वजह है उनके पीछे खड़े हिंदुस्तानी, जिनको अपने लीडर पर पूरा विश्वास है। मोदी में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है? लीग से हटकर मोदी को खड़ा करता है, वर्ल्ड का बेस्ट पीएम बनाता है। यह समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग की फुल डिटेल स्टडी करनी होगी। उन लोगों को सुनना होगा, उनसे बात करनी होगी जो मोदी के बदलाव के खुद गवाह हैं। एनुअल डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होते हैं और गुवाहाटी में उन्होंने पहली बार सारा डीजी को मैसेज भेजा कि आप इस ड्रेस में आना है और मीटिंग लंबा चलेगी और पूरा सब्जेक्ट वाइज उसका अध्ययन होगा। तो पहले तो डीजी कॉन्फ्रेंस में लोग एक दिन आते हैं, प्रधानमंत्री आधा घंटे के लिए आके भाषण देके खत्म होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री 3 दिन साथ में रहे। दूसरी बार जो हुआ वो गजब की, 5:30 बजे योग करना, फिर 7:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल में भी ईच टेबल में, जैसे कि मैं गृह राज्य मंत्री हूँ, उसमें आईबी के एक सीनियर ऑफिसर और 6 राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसे करके जो टेबल है, खाने का टेबल है, वहां में भी किसी विषय का चर्चा, नोटिंग करना, उसके बाद सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में जाना और 3 दिन इतना इंटेंसिव मीटिंग। ये अधिकारियों ने, पुलिस ऑफिसर ने भी कभी नहीं सोचा कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री होते हैं जो 3 दिन साथ रहते हैं और एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। मोदी की एक बड़ी खूबी है, खासियत है, वो वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां पर लोग खत्म करते हैं। पहले एक नैरेटिव सेट था, पीएम आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। लेकिन मोदी युग में प्रधानमंत्री आते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं और पहला बदलाव यहीं से शुरू होता है। साल 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, अब हिंदुस्तान 2022 पर खड़ा है। इन 8 साल में मोदी ने क्या क्या बदला, कैसे बदला? 2014 में हिंदुस्तान की तस्वीर क्या थी, दुनिया की सोच हिंदुस्तान को लेकर क्या थी और अब विश्व भारत को कैसे देखता है? पॉइंट बाय पॉइंट बात होगी। किसी भी देश के लीडर पर देश की सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था की, विकास की, समाज की जिम्मेदारी होती है। हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, एकदम ठीक होगा। हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश राष्ट्र के नवनिर्माण का हो, जब लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का हो, जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा और उनका कल्याण करने का हो, तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। आमतौर पर सरकार चलाने की एक अनकही स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिसी बनाओ, उसका प्रचार करो और सरकार का काम खत्म। लेकिन एक बार जब पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे मुश्किल काम होता है उसको अमल में लाना, जिसके लिए मजबूत लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, जो सिस्टम को चला सके, टीम को लीड कर सके। यही बात मोदी को सबसे अलग बनाती है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से वो हर एक डिपार्टमेंट की ऐसी जानकारी रखते थे जो खुद उस डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं पता होती थी। तो एक बार ऐसी बातचीत निकली तो मैंने पूछा कि कैसे चल रहा है काम वगैरह, अभी नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद वगैरह, तो क्या क्या आपको लगता है? तो नरेंद्र भाई के साथ कुछ मीटिंग रही तो हम 10 प्रश्नों की तैयारी करके जाते हैं, अलग अलग विषयों की, कि ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। हमने जो प्रिपेयर हम करके गए थे, सब कुछ लेकर गए थे, वो तो सब हो ही गया। वो उसके अलावा उन्होंने एक प्रश्न ऐसा पूछा कि जिसका जवाब हमारे किसी के पास नहीं था। एक घटना ऐसी घटी थी कि जिसके बारे में हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोग अनभिज्ञ थे। उन्होंने तुरंत कहीं एक जगह फोन लगाया और उससे बात करके उस घटना का प्रमाण इन सबको दिया कि हमको पता ही नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे इस क्षेत्र में कुछ घटना घटी है जिसकी जानकारी कुछ सेकंड में, कुछ पलों में मुख्यमंत्री जी के पास आती है और हम डिपार्टमेंट के लोग, हमारे पास नहीं आती है। वो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, तो उसकी वजह यह है कि उनका खुद का लोकल लेवल तक डायरेक्ट रेपो उनका था। कड़ी मेहनत, डिटेल जानकारी लेना,
जल्द से जल्द पूरी स्थिति को समझना। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। देश के विदेश मंत्री तब से मोदी को जानते हैं जब वो चीन में भारतीय राजदूत थे और मोदी गुजरात के सीएम थे। उनको प्रधानमंत्री मोदी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जिसका जिक्र उन्होंने खुद किया है। जब मैं बतौर विदेश सचिव प्रधानमंत्री मोदी से मिलता था, तब मैंने गौर किया कि वो कुछ भी पूछने से पहले झिझकते नहीं हैं और बड़े ध्यान से पूरी बात को सुनते हैं। अब दिल्ली ब्यूरोक्रेसी का ये अहम हिस्सा बन गया है। जो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है, वो अपने विषय की पूरी तैयारी करके आता है। जैसा एक लीडर सोचता है, जहां तक सोच सकता है, वैसा ही सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी भी सोचने लगती है। प्रधानमंत्री मोदी के पास पब्लिक लाइफ का अच्छा বাচ্চাদের সাথে মিশে যায় বা বড়দের সাথে মিশে যায়, মানে যেখানে যায় উনি সেখানকার লোকের সাথে একটু মিশে যেতে পারে, স্টুডেন্টদের সাথে মিশে যেতে পারে। उस वक्त हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आतंकवाद था। 2004 से 2014 के बीच आतंकी हमलों में 1000 लोगों की मौत हुई, जबकि 3000 लोग इस दौरान घायल हुए। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी गुजरात में आतंकी हमले हुए थे। पहला आतंकी हमला 2002 में हुआ, दूसरा आतंकी हमला 2008 में हुआ, लेकिन इसके बाद गुजरात में आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी को यही काम देश में करना था। मोदी ने सबसे पहले सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करने के लिए सुरक्षा की जरूरतों को मजबूत किया। मोदी सरकार ने सुरक्षा मुद्दों को सुलझाने की एकदम अलग पॉलिसी तैयार की। इंटेलिजेंस को सबसे मजबूत किया ताकि कहां, कब, क्या होने वाला है वो पहले से मालूम पड़े और उससे निपटा जा सके। देश में मौजूद आतंकी संगठन खत्म किए गए। विदेशों में आतंकी ग्रुप पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। दूसरे देशों में भी कोवर्ट ऑपरेशन किए गए। पिछले 7 साल में 15 देशों से सबसे ज्यादा गल्फ देश हैं, जहां से 150 आतंकी भारत लाए गए। नतीजा, आतंकवाद को कश्मीर से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अल-कायदा जैसा आतंकी संगठन भारत में अपना नेटवर्क जमा नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक मोदी ने सब कुछ बदल दिया, बल्कि इसके पीछे 2 दशकों का अनुभव और रिस्क लेने की अद्भुत क्षमता है। एक लीडर का प्रॉब्लम सॉल्वर होना सबसे जरूरी है। मैं दोस्तों বলার টোনটাই আলাদা। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मार दे देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। बहुत कम लोगों को यह पता है, कई बार आतंकियों ने बड़ा हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सही वक्त में उसको विफल कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की एक ओपन पॉलिसी है, जिसको हर एक मंत्री, अधिकारियों को फॉलो करना होता है। दुनिया तभी इंडिया को सीरियसली लेगी जब भारत अंदर से मजबूत होगा। 2015 में पीएम मोदी को बताया गया, एयरफोर्स में फाइटर्स जेट्स की कमी है, जो देश की सुरक्षा पर खतरा है। 2014 से रक्षा बजट 6 गुना बढ़ चुका है। मोदी सरकार में राफेल फाइटर खरीदे गए, रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया, अमेरिका से अपाचे, चिनूक, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे, इजराइल से स्पाइक मिसाइल ली गई, देश में वज्र तोप बनी, 4 मेड इन इंडिया स्कॉर्पियन सबमरीन शामिल हुए। साल 2014 में डिफेंस का एक्सपोर्ट 1941 करोड़ रुपए का था, जो अब 11,607 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने बॉर्डर्स को सुरक्षित और सेना को मजबूत किया। सैनिकों को लोकल लेवल में फ्री हैंड दिया गया। देश के बाहर पाकिस्तान और चीन 2 बड़े चैलेंज थे। दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री थी और दोनों से मोदी को निपटना था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया,
नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान कोई भी अपनी सुधरा पुरानी आतंकी आदत छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान को लगता था कि वो आतंकी हमले करेंगे, भारत सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि जंग हुई तो परमाणु युद्ध तक बात पहुंचेगी, लेकिन उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। एक्सप्रेस अंदर है ना? ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है? ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে গেছে। ये दिवाली के लिए रखा है क्या? उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से, पुलवामा का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया। पाकिस्तान पर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उसको आर्थिक सजा भी मिली। दो 2018 में पहली बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया, UNSC में मुद्दा बनाया। आज भी पाकिस्तान FATF से जूझ रहा है। अब बारी थी चीन की, जो चालबाज भी है और ताकतवर भी। LAC में भी मोदी ने ये क्लियर मैसेज दिया, अगर सीमा की बात आएगी तो देश पीछे नहीं हटेगा। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পেলে সবাই যে কি ধরনের একজন পাওয়ারফুল লিডার হয়ে উঠেছেন নরেন্দ্র মোদী, যা এখন গোটা বিশ্বের কাছে কোনো বিকল্প নেই মোদী ছাড়া। তো এটা আমাদের কাছে সত্যি খুব আনন্দের। আর এই ভিডিওটা নিয়ে আমার মনে হয় না বেশি কিছু বলার আছে, নরেন্দ্র মোদীকে সবাই চেনে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই বিষয়টা কম বেশি সবাই লাভ আছে এই ব্যাপারে। তো এছাড়াও এই যে ভিডিওটাতে দেখি যে তাছাড়াও অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যেগুলো নরেন্দ্র মোদীকে আরো শক্তিশালী করেছে, অনেক কড়া ডিসিশন নিয়েছে যেগুলো দেশের এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী নিতে পারেনি। যেমন আপনি ধরুন চিন্তা করুন, দুম করে 2000 নোট 1000 নোট ব্যান করে দিল, 500 নোট ব্যান করে দিল, চেঞ্জ করে দিল, পুরো সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করে দিল। এই দমটা কারোর মধ্যে ছিল না। এছাড়াও আপনি দেখুন চীনের মতো দেশ যে সবসময় আমাদেরকে দমিয়ে রাখতো, সেই দেশের সঙ্গে অর্থনীতি ব্যবস্থা, চীনের অর্থনীতি পুরো মেরুদণ্ড ভেঙে দিল ভারতবর্ষে। চীনের প্রত্যেকটা অ্যাপস বন্ধ করে দিল ভারতবর্ষে। চীন থেকে কোনো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কিছু হবে না, পুরো চীনের অর্থনীতি শেষ করে দিল। এখন চীন এখন নরম সুরে গাইছে এখন ভারতের সাথে সবার সম্পর্ক তৈরি করার জন্য। তো এমনিই প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের দরবারে 1 নম্বরে আসতে পারেনি, এর জন্য অনেক কড়া পদক্ষেপ নিতে হয়েছে, যেগুলো এই আমাদের নরেন্দ্র মোদী বলেই সম্ভব। আর সে এখন শুধু ভারতের নয়, রাজ্য তো পরে রাজ্য ছেড়েই দিল, শুধু ভারতের নয় গোটা বিশ্বের লিডার এখন তিনি। তাকে এখন অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীরা ফলো করতে থাকে। আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তার ধারে কাছে নেই, যেহেতু আমাদের প্রধানমন্ত্রী 76, আমেরিকার 40%, মানে এটা আমাদের গর্বে মানে বুক ভরে যাচ্ছে। এছাড়া আমাদের 370 ধারা বিলোপ কাশ্মীরে, 3 তালাক প্রথা মেয়েদের জন্য, মুসলিম মহিলাদের জন্য ভীষণ বড় একটা পদক্ষেপ 370 ধারা। বহু বছরের পুরনো বিতর্কিত রাম মন্দির, যেটা বাবরি মসজিদ ছিল সেইটাকে রাম মন্দিরে রূপান্তরিত করা, এই ধরনের প্রচুর বড় বড় পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন। এবং প্রায় 2 বছরের কাছাকাছি উনি গরিবকে ফ্রিতে রেশন দিয়েছেন, প্রত্যেক মাথা পিছু মানুষকে 5 কেজি করে রেশন, চাল গম ডাল সব কিছুই উনি দিয়েছেন। তো এরকম লিডার আমাদের পাওয়াটা আমাদের কাছে খুব ভাগ্যের ব্যাপার। এমনকি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে মহাকাশে যেরকম চন্দ্র সূর্য একটা করেই হয়, ঠিক সেরকম বিশ্বে মোদিও একজনই আছে। তো এটা শোনার পরে আমাদের বুক সত্যি গর্বে ভরে ওঠে। তা ওনার নামে যা বলো তাই কম হয়ে যাবে অনেকটাই। যদি পারেন কিছুটা তার জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন, যদি PM নরেন্দ্র মোদী সিনেমাটা দেখেন, যদি পারেন সিনেমাটা দেখবেন, কিছুটা অন্তত জানতে পারবেন ওনার ব্যাপারে। আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী কোনো এক সময় নরেন্দ্র মোদীর বায়োগ্রাফি নিয়ে রিয়াক্ট করা। একদম আমরা খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছি এরকম টাইপের কোনো ভিডিও নিয়ে আসার জন্য। এই বিখ্যাত মানুষটার বায়োগ্রাফি নিয়ে আনার চেষ্টা করছি আমরা। তা আপনাদের থেকে অনেকে রিকোয়েস্টও করেছে, তো সেই রিকোয়েস্ট আমরা রাখতে চলেছি সামনের বারের ভিডিওতে আশা করি। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পেলেন আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে, আর শেয়ার তো অবশ্যই করবেন, লাইক করবেন, এছাড়া সাবস্ক্রাইব তো করবেনই, আর আমাদের পাশে থাকবেন। তো আরেকটা কথা বলে দিই ফ্রেন্ডস, তো ইন্ডিয়া টিভির যে এটা দেখলাম আমরা বিজ্ঞপ্তিটা, বা ইন্ডিয়া টিভির যে প্রোগ্রামটা দেখলাম, তো অতি অবশ্যই তার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আমাদের চ্যানেলের ডেসক্রিপশানে। তো লিঙ্কটা থেকে গিয়ে ইন্ডিয়া টিভির এটা প্রোগ্রামটাকে আপনারা লাইক করে দেবেন, আর অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। একদম। আর সাবস্ক্রাইবটা তুমি বলে দাও। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন। আর আজকের আমাদের ভিডিও করবো এই পর্যন্ত শেষ করছি আমরা।
পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বায়োগ্রাফি নিয়ে আসছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, ফলো রাখবেন। নমস্কার। নমস্কার।